Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, myself Mohammad Shakib. I did my BTech in Civil Engineering from IIT Patna and graduated in 2023, that is from 2019 to 2023. I did my schooling from class nursery to 12th from Bahraich only, that is a private school, and I secured an All India rank 1 in UPSC Engineering Services examination this year 2025. Also I already secured an All India rank 6 in GATE examination 2024 and 15th rank in UPSC Engineering Services examination last year. I appeared again in Engineering Services examination because to get into Indian Railway Management Service. Talking about this UPSC Engineering Services examination, this examination is conducted in 3 stages, that is the preliminary stage, mains stage and then interview stage or personality stage. So this preliminary is held on the 18th of February every year, and then mains is around June 26th or 27th of June, and then interview is around October to November month. Through engineering services you will get through UPSC Engineering Services examination you will enter into various services like Indian Railway Management Services, then Central Public Work Department, then MORTH, Ministry of Road Transport and Highway, then IDSC, Indian Defence Service of Engineers under Military Engineering Services, and so on. So I must suggest all the engineering graduates to appear in this examination. To crack this exam, I have taken coaching from MadeEasy online courses, so I do highly recommend all of you to join this MadeEasy course. As I have already mentioned that I secured an All India rank 6 in GATE examination, so through GATE examination all the engineering graduates will enter into the PSU, that is Public Sector Unit. These jobs are also highly recommended, and these are mostly the government jobs. अभी मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करता हूँ. मैंने ये कोर्स जो है इसकी प्रिपरेशन मैंने 1 जनवरी 2022 से चालू करी थी. फिर लगभग 14 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद इसका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन हुआ जो 2023 में 18 फरवरी को. उसमें मैं सफल रहा. फिर 4 महीना फिर मैंने और पढ़ा मेंस के लिए और उसमें भी मैं सफल रहा. तो 18 मंथ की लगभग जर्नी थी मेंस क्लियर करने के लिए. फिर 2 महीने के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा, लेकिन उसमें फिर मैं असफल रहा. तो टोटल 20 महीने लगे मुझे. देन फिर से मैंने 2024 के लिए पढ़ाई करी और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई. प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 जो होता है वो GS का होता है. उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं. करंट अफेयर्स होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, एथिक्स होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, और ऐसे मटेरियल साइंस होते हैं, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ऐसे करके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं. ये पेपर 2 घंटे का होता है जिसको बोलते हैं GS पेपर. पेपर 1 जिसको बोलते हैं GS, उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं. इसको 10 सब्जेक्ट्स में आते हैं करंट अफेयर्स, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, देन मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस. सो ये 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मैंने मेडीजी के ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए थे. फिर ऑनलाइन लेक्चर नोट्स बनाए थे, वो ही सफिशिएंट थे. फिर मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इनके सॉल्व किए और मोर और लेस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस बार मेरा. 120 नंबर आए मेरे 200 में से. अगर आप मेडीजी के कोर्सेज को फॉलो करते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज को फॉलो करते हैं देन इसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. पेपर 2 एक्चुअली टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC, स्टील स्ट्रक्चर्स. सो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अगेन मैंने ऑनलाइन मेडीजी कोर्स लिया हुआ था
online lectures plus class notes, then last year question I used to solve last year question papers. अगर आप इतना करते हैं और थोरोली करते हैं, ठीक से मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते हैं, देन यू विल सिक्योर अ गुड रैंक इन द गुड मार्क्स इन द टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज वेल। तो पेपर 1 में जिसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको बोलते हैं जीएस पेपर, उसमें जैसे है करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंस सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देन एथिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एंड देन इंजीनियरिंग ड्राइंग है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप लेक्चर नोट्स देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस है, मटेरियल साइंस है। इन सब्जेक्ट्स को कोचिंग में काफ़ी हद तक कवर किया जाता है, तो इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। देन एप्टीट्यूड है एंड मैथमेटिक्स है। तो दीज 2 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गर फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है एंड एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली मार्क्स स्कोर कर सकता है जीएस पेपर में। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन 10 सब्जेक्ट्स के लिए आप अलग से कोई बुक या फिर कोई बुक ना प्रेफर करें, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट हो जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके नोट्स कंसाइज है और रेस्ट्रिक्टेड हैं और एक सिंगल पाथ पर हैं तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, rather than preferring notes books from in each and every subjects will make this syllabus very vast, so avoid doing it. पेपर 2 जिसको बोलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, ये सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें लगभग 16 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिए, लगभग 18 महीने दिए हुए हैं इन 16 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने लगाए हैं इनके PYQ ऑफ लास्ट ईयर, मेंस के PYQ मैंने लगाए हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के PYQ मैंने लगाए हुए हैं, और फॉर लेक्चर नोट्स एंड वीडियो। और इनको कवर करने के लिए इन सब्जेक्ट्स में है क्या, उसके लिए मैंने कोचिंग ली है और नोट्स भी मैंने वहीं से बनाए हुए हैं। सो पेपर 2 के बारे में मैं आपको बताऊं, जिसको बोलते हैं टेक्निकल पेपर। इसमें क्या होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 150 क्वेश्चन उन्हीं 16 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो हो गया सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स। इनसे अगर रिलेटेड आपने क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, देन दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड स्कोर अ गुड मार्क्स। अब ये 16 सब्जेक्ट्स में जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने लेक्चर नोट्स फॉलो किए हुए हैं और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। अभी ये अगर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है आपका जीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो फिर आगे काम नहीं आएंगे। अब फिर होता है मेंस क्वेश्चन। तो जब मेंस होता है तो मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे 8 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में और 8 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में, और हर एक पेपर 300 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो मेंस का होता है सेट होता है वो 600 नंबर के होते हैं। 300 नंबर होते हैं पेपर 1 के और 300 नंबर होते हैं पेपर 2 के। पेपर 1 में 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। और जैसे कि पेपर 1 की बात करें तो 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन विल बी इन ईच सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी कंपलसरी, और फिर 6 में से आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेंड करने होंगे, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब ऐसा कर सकते हैं आप कि एक क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 से अटेंड कर लीजिए और 2 क्वेश्चन जो है सेक्शन 2 से अटेंड कर लीजिए, या 2 क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 से अटेंड कर लीजिए और एक क्वेश्चन सेक्शन 2 से अटेंड कर लीजिए। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपने सेक्शन 2 से अटेंड कर लिए और 0 क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 से अटेंड किए, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। एक क्वेश्चन आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम में। कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी क्वेश्चन पर फंस जाए, तो मेरा यही गाइडेंस है कि आप किसी क्वेश्चन पर 10 से 12 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा माइंड उसी में ऑक्यूपाइड हो जाएगा और आपका पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो आप तुरंत ही उसको छोड़ दीजिए, उसमें टाइम इन्वेस्ट मत करिए। पेपर 1 के बारे में मैंने बता दिया है, पेपर 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें भी सिमिलरली 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो इस सेम वही पैटर्न है। पेपर 1 है, 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन इन सेक्शन 1 एंड 4 क्वेश्चन इन सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी होता है। अब बचे 6 क्वेश्चन, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया सेक्शन 1 से और 2 क्वेश्चन आपने अटेंड किया सेक्शन 2 से, और 2 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया सेक्शन 1 से और 1 क्वेश्चन अटेंड कर लिया आपने सेक्शन 2 से। ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप लेकर अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों कंबाइन करके मार्क्स अगर आपके अच्छे हुए, जैसे कि 500 नंबर का आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है तो 200 नंबर होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के, 200 नंबर होते हैं आपके जीएस सब्जेक्ट के और 300 नंबर होते हैं आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के। तो आपने 500 में से कुछ नंबर लेकर आए, और फिर 600 नंबर का होता है मेंस, आपने 600 में से कुछ नंबर लेकर आए मेंस में। आप दोनों को ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने 300 नंबर लेकर आए प्रीलिम्स में और 400 नंबर लेकर आए मेंस में, तो आपके टोटल बन गए 700 नंबर, और आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा कि आपको इस डेट को यूपीएससी भवन में जाना है, तो आप गए। अगर आपका इंटरव्यू फिर शानदार रहता है तो फिर क्या होता है कि आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन आपको फॉर्मल सूट पैंट पहनना होता है। आप गए, वहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं जिनका नाम आपको नहीं मालूम होता है, आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है कि इंटरव्यू में आपको कौन सा इंटरव्यूअर मिलेगा, तो कौन सा पैनल आपको मिलेगा, कौन आपका इंटरव्यू लेगा। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर 4 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन होता है एंड देन 3 मेंबर्स। those 4 persons will ask questions from you and the interviews are mostly held in English only। तो इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट का चलता है, जिसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी कोई अचीवमेंट है, प्रीवियस अचीवमेंट है जिसमें आपने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। आपकी हॉबी जैसे हो सकती है, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग हिंदी मूवीज़, तो क्रिकेट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे what do you think about the privatization of the cricket stadium, what is the difference between the swing and the seam। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी हॉबी के बारे में भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी के पैनल मेंबर्स होते हैं वो आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। प्लस अगर आप किसी जॉब में हैं तो वो आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और जैसे आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक में आपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया होगा तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो इन 25 से 30 मिनट में आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर जो मार्क्स होंगे वो आपको बताए नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ही आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए गए हैं। सिमिलरली आपको प्रीलिम्स और मेंस के भी मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, वो भी आपको जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जो नवंबर दिसंबर में, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितने नंबर लिए गए। तो क्या है कि यूपीएससी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, मतलब काफ़ी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। तो ये है कि आपके मार्क्स रिवील नहीं होते, आपका नाम रिवील नहीं होता है। जब सब कुछ हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तब आपको बताया जाता है कि इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। यूपीएससी के इंटरव्यू में आप झूठ बोलना अवॉइड करें, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी एज 60-70 के अराउंड होती है, सो दे विल ईजिली कैच यू। तो झूठ बोलना अवॉइड करें। अगर अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली बोल दीजिए, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ओके आई एम सॉरी सर, आई विल लर्न अबाउट इट, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर आपने कुछ अपने मन से कोई कहानी बनाने की कोशिश करी तो दे विल ईजिली कैच यू, और उसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और आपके मार्क्स भी इंटरव्यू में काफ़ी कम दिए जाते हैं। जब आपका सिलेक्शन आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो उसके 1 महीने बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। उन मेडिकल टेस्ट में जैसे आपका देखा जाएगा कि आपकी कलर ब्लाइंडनेस है क्या नहीं है, आपका BMI चेक किया जाता है, आपका हाइट वेट चेक किया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, टू डिटेक्ट दैट आप कोई डिसीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। फिर उसका मेडिकल का रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद दिया जाता है। फिर उसके 2-3 महीने बाद आपको ये सर्विस एलोकेशन होती है कि आपको कौन सी सर्विस मिली है, जैसे कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिली है, या फिर CPWD मिला है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिला है, या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिला है। तो आपको कौन सी सर्विस मिली है वो आपको मेडिकल रिजल्ट के 2 से 3 महीने बाद पता चलेगी।
फिर 2 से 3 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो टोटल 8 से 9 महीने लग जाते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग में। जैसे कि अभी मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो मेरा लगभग अगस्त या सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग होगी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में। हर जैसे जितने भी मैंने आपको सर्विसेज बताई उनके ट्रेनिंग ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। मोस्टली सारी ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 से 11 महीने की होती है, बट IRMS की इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो लगभग होती है वो 18 महीने की होती है। और बाकी सर्विसेज में ट्रेनिंग ड्यूरेशन लगभग 8 से 10 महीने के होते हैं। उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है और एग्जीक्यूटिव पावर आपको दे दी जाती है। इसमें आपको घर मिलता है, आपको पर्सनल व्हीकल मिलती है, आपको ड्राइवर मिलता है। ये सब बेनिफिट्स हैं इन सर्विसेज में जाने के। अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है और आप हार्ड वर्किंग हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। इन जॉब में काफ़ी ज़्यादा अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जाएं, जो कि UPSC कंडक्ट कराता है। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हार्डवर्क मांगता है। लगभग 18 से 24 महीने का हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बट अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो इन सर्विसेज में अगर आप जाएंगे तो आप क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे। तो ये काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन है सोसाइटी में भी, और आप काफ़ी अच्छी लाइफ, काफ़ी अच्छी पीसफुल लाइफ जिएंगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, और मेरी इंस्टाग्राम ID है IES शाकिब, और you can search also Mohammad Shakib. And I am very much thankful to Delhi Knowledge Track for conducting this interview and spreading a good technical knowledge among the students. Thank you.